પહેલાં જેમને પદભાર સંભાળ્યો છે એવા અમારા ચેમ્બરના નવનિયુક્ત પ્રમુખ શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતી, ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખ શ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવાળા, ચેમ્બરના સેક્રેટરી શ્રી દીપકભાઈ શેઠવાળા અને ચેમ્બરના ટ્રેઝરર શ્રી પરેશભાઈ લાઠિયા. હવે શું આશીષભાઈને વેલકમ સ્પીચ આપવા માટે વિનંતી કરીશ. Friends, I wholeheartedly, with great pleasure, welcome our guest speaker, Mr. S.K. Singh, who is going to talk about the newly introduced guidelines for hallmarking, and along with that, my colleague, President, Vice President, Sri Himanshubai Bodawala, Honorary Secretary, Sri Deepakbhai Shetwala, Honorary Treasurer, Sri Paresh Lathia, members from Chamber, and participants from trade and industry. A very warm welcome to you all. Hallmarking is an accurate determination of an official recording of the proportionate content of the precious metal in precious metal articles. Hallmarkings are thus official marks used in many countries as a guarantee of purity and fitness of the precious metals. એટલે આપણે ત્યાં વર્ષોથી સોનું ચાંદી ખરીદવાની પ્રથા છે, સદીઓ જૂની, અને એ સોના ચાંદીમાં કેટલું કન્ટેન્ટ છે, કેટલી પ્યોરિટી છે, એના માટેનું આ હોલમાર્કિંગનું એક પ્રોવિઝન આવ્યું છે. The concept of hallmarking itself dates back near 400 AD and was discovered on the silver object in Byzantine. એટલે 400 AD થી આ હોલમાર્કિંગની સિસ્ટમ એડોપ્ટ કરી છે વર્લ્ડમાં, અને સ્પેશિયલી વિથ રિગાર્ડ્સ ટુ સિલ્વર, ડાયમંડ, ગોલ્ડ એન્ડ પ્લેટિનમ. ધ કોન્સેપ્ટ વોઝ ઇનિશિએટેડ ઇન યુનાઇટેડ કિંગડમ ફ્રોમ 1300 AD ઇનવર્ડ્સ. એટલે આ ઘણી જૂની સિસ્ટમ છે હોલમાર્કિંગની. ઓન January 14, 2020, Ministry of Consumer Affairs, Foods and Public Distribution had issued notification for compulsory hallmarking of gold jewellery. The jewellers across the India were given 1 year time frame to get their entire stock hallmark. From 16 June 2020, jewellers have been allowed to sell only hallmark gold jewellery and artifacts. The government has planned a phase-wise implementation of mandatory hallmarking under the Hallmarking of Gold and Jewellery and Gold Artifacts Order 2020. The BIS system of hallmarking of the gold jewellery began in April 2000. The standard specification governing this system are IS 1417, grade of gold and alloys, jewellery artifacts, and IS 1418, assaying of gold in gold bullion, gold alloys, gold jewellery and artifacts. IS 2790, guideline for manufacturing 14, 18 and 22 carat gold alloys. IS 3095, gold solder are used in manufacture of jewellery. BIS introduced hallmarking for silver jewellery in December 2005 under IS 2112. The standard specification for the hallmarking of silver jewellery artifacts under the hallmarking of under the hallmarking law. So I welcome you all in this program. આપણે ત્યાં ગેસ્ટ સ્પીકર મિસ્ટર S.K. સિંહ આવ્યા છે. એ તમારું જે કંઈ બી હોલમાર્કિંગના જે BIS સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોવિઝન્સ છે એની પૂરતી માહિતી આપશે, અને મને ખાતરી છે કે આપ સૌ આ સેમિનારથી તમારું નોલેજ અપગ્રેડ થશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. BIS હેડ શ્રી S.K. સિંહ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. S.K. સિંહ સાહેબનું મોમેન્ટો સાથે સ્વાગત શ્રી આશીષભાઈ અને હિમાંશુભાઈને કરવા વિનંતી. S.K. સિંહ સાહેબ એ આપણા ગુજરાતના ડિરેક્ટર હેડ ઓફ અમદાવાદ અને સુરત બ્રાન્ચ ઓફિસના છે. BISના એમને જોઈન કર્યું હતું 1996થી ફોર આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર
અને 1996 થી 2002 ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ અને BIS હેડક્વાર્ટર્સમાં એમને જોઈન કરેલું હતું. 2002 થી 2008 ગાઝિયાબાદ ઓફિસમાં એમને BIS તરીકેની કામગીરી સંભાળી હતી. 2008 થી 2014 અમદાવાદ ઓફિસમાં એમને BIS તરીકેની કામગીરી સંભાળી હતી અને 2014 થી 2020 રાજકોટ ઓફિસમાં BISની કામગીરી સંભાળી હતી. 2017 થી 2020 હેડ ઓફ ધ રાજકોટ ઓફિસમાં પણ એમને હેડ બન્યા હતા અને 2020 થી આજ સુધી અમદાવાદ બ્રાન્ચ ઓફિસના આજે આપણા ગુજરાતના હેડ એવા શ્રી સિંઘ સાહેબનું આપણા ચેમ્બરમાં સ્વાગત છે. સિંઘ સાહેબ, કેરી ઓન યોર ફ્લોર. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का ये जो ज्वेलर्स अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें BIS की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और साउथ गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये वेन्यू प्रोवाइड किया और ये कार्यक्रम आयोजन करने का अनुमति दिया. उसके लिए अध्यक्ष महोदय और सभी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद. सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिरकार इस कार्यक्रम का आयोजन किया क्यों गया है. तो इसका जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि ज्वेलर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का, ताकि अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं या जो चेंजेज हुए हैं उनके बारे में सही जानकारी दी जा सके, कुछ जो भ्रांतियां हैं, जो गलतफहमियां हैं वो दूर की जा सके. और इसके अलावा अभी जो नियम है, गाइडलाइंस हैं, अगर इन्हें लागू करने में किसी तरह की व्यवहारिक समस्याएं हैं तो उनके बारे में जान करके, और जो पॉलिसी डिपार्टमेंट है, हॉल मार्किंग डिपार्टमेंट हमारे हेडक्वार्टर में, वहाँ पर फीडबैक देना कि ये चेंजेस करने से और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस स्कीम को लागू किया जा सके. इन सब चीज़ों के बारे में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है. साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर अभी जो उद्देश्य है हमारे कार्यक्रम का वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं उनके बारे में जानकारी देना और जो कमियां हैं या आपको समस्याएं हैं उनके बारे में फीडबैक लेना. यहाँ पर हम किसी भी ऐसी समस्या का जो ऑलरेडी क्लेरिफाइड नहीं है समाधान तो नहीं बता सकते, इसलिए उस पर बाद में प्रश्नोत्तर के समय पर किसी तरह का आर्गुमेंटेशन या उससे हमें इस कार्यक्रम में कोई फायदा नहीं होगा. अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, आपके कुछ व्यवहारिक समस्याएं होंगी, अब वो आप हमें बताएंगे, हम आगे वहाँ पर जानकारी देंगे. इसलिए कृपया ध्यान रखें कि हम जब आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में तो जो हमारे प्रश्नोत्तर हों या हमारा आपस में जो इंटरेक्शन हो वो इसी दिशा में हो. तो सबसे पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँगा. सबसे पहले तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने BIS एक्ट 2016 के अंतर्गत ये हॉल मार्किंग मैंडेटरी की है. तो जो BIS एक्ट 2016 है उसमें हॉल मार्किंग से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले चैप्टर्स में कुछ डेफिनेशन दी गई हैं. उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो दूसरे नंबर का एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर्स क्या है जो कि BIS से रिकॉग्नाइज्ड होगा, और जो कि जो भी गोल्ड या सिल्वर या जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनकी टेस्टिंग करेगा और टेस्टिंग करने के बाद उन पर हॉल मार्क करेगा. जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप सब लोगों के लिए जानकारी के लिए है, ज्वेलर. तीसरा, ज्वेलर्स मीन्स ए पर्सन engaged in the business to get manufactured precious metal articles for sale or to sell precious metal articles. मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो ज्वेलरी बेचने के लिए प्रोडक्शन कर रहा है वो भी ज्वेलर की कैटेगरी में है, या जो सिर्फ ज्वेलरी बेच रहा है, यानी दोनों
जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों कर रहा है, दोनों ही ज्वेलर की कैटेगरी में है। तो जो भी नियम कानून है इस एक्ट के या जो भी नोटिफिकेशंस के, उन दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। सर्टिफाइड ज्वेलर कौन रहेगा? जिसने BIS से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और ताकि वो जो प्रीशियस मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, अभी प्रेजेंट में उनको बेचने के लिए BIS के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है। पहले ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था, लेकिन अभी फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन, यानी जिसने भी BIS से रजिस्ट्रेशन कर लिया वो सर्टिफाइड ज्वेलर माना जाए। हॉलमार्क प्रीशियस मेटल से रिलेटेड, उसका जो उसमें जो मेन मेटल है, यानी गोल्ड है तो गोल्ड का कितना कंटेंट है, उसका जो वैल्यू है, उसके बारे में जो इंडिकेट करेगा कि उसमें कितना % गोल्ड है या सिल्वर है, वो उसके लिए हॉलमार्क माना जाए का डिफाइन किया गया। फिर है प्रीशियस मेटल्स, अभी जो फिलहाल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और पैलेडियम नोटिफाई किया हुआ है, और जो कि अभी हॉलमार्किंग सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में की जा रही है। और कोई भी प्रीशियस मेटल आर्टिकल यानी इन मेटल से बना हुआ जो आर्टिकल होगा वो प्रीशियस मेटल आर्टिकल माना जाएगा। अब आते हैं जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, वो है अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1। ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी प्रोडक्ट या अगर प्रीशियस मेटल है तो उसके ऊपर हॉलमार्क, और जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर स्टैंडर्ड मार्क यानी ISI मार्क जो है, उसके बारे में नोटिफाई कर सकती। पहला रिक्वायरमेंट कि यानी गोल्ड के ऊपर हॉलमार्किंग होगा, ये सबसेक्शन 1 में है। सबसेक्शन 2 में क्या है कि जब ऊपर का सबसेक्शन 1 का नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद जो लोग बेच सकेंगे ये वाला अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो जो रिटेल आउटलेट्स होंगे उनका सर्टिफिकेशन के संबंध में डील करता है। तीसरा, अभी जो मैंडेटरी किया गया है वो सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टिंग द ब्यूरो बाय एन ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट मेक इट कंपल्सरी फॉर द सेलर्स ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 1 टू बी सोल्ड ओनली थ्रू सर्टिफाइड आउटलेट्स। यानी कि पहला चीज बेचना, सिर्फ हॉलमार्क बेचना कंपलसरी किया गया, और दूसरा वो भी सिर्फ सर्टिफाइड आउटलेट्स के थ्रू, यानी दोनों चीजें कंपलसरी की हैं। ये इस सेक्शन के अंतर्गत है। अब सेक्शन 4 क्या कहता है कि BIS को पावर्स दिए गए हैं, जिसमें कि जो ज्वेलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन या जो ISI मार्क वगैरह के इंडस्ट्रीज हैं उनके लाइसेंस ग्रांट करने का, रिन्यू करने का, सस्पेंड करने का या कैंसिल करने के पावर्स BIS को दिए गए हैं। फिर इसी तरह जो सेक्शन 5 है वो हॉलमार्किंग सेंटर को रिकॉग्नाइज करने का, मेंटेन करने का, इस्टेब्लिश करने के पावर्स इस सेक्शन में दिए गए हैं। फिर जो सेक्शन 6 है वो ये कहता है कोई भी सेंटर जो कि सिर्फ BIS से रिकॉग्नाइज्ड होगा वही हॉलमार्क कर पाएगा, और उसको कैसे करना है, जो प्रोसीजर BIS के रूल्स रेगुलेशंस में दी होगी उसके हिसाब से। फिर 7 है, उसमें यह है कि उस हॉलमार्क करना है लेकिन पहले टेस्ट करना है और एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के बाद ही करना है। कोई भी अगर वो पूरी प्रोसीजर फॉलो नहीं करता तो वो भी लीगली नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 आता है, ये उसके लिए पहले जब मैंडेटरी रिजीम में नहीं था या फिर उन डिस्ट्रिक्ट्स में जिसमें मैंडेटरी अभी भी नहीं है, उसके लिए है कि नो पर्सन शैल इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, सेल, स्टोर और एग्जिबिट फॉर सेल एनी गुड्स अंडर दिस एक्सेप्ट अंडर सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ब्यूरो। यानी कि कोई भी ज्वेलर या मैन्युफैक्चरर
बिना BIS के रजिस्ट्रेशन के सेल, स्टोर या एग्जिबिट फॉर सेल, ये तीनों ही काम, यानी जो आपको एक तरह से एग्जिबिट फॉर सेल का मतलब हुआ जो आप उसमें अपने काउंटर्स में जो रखते हैं वो ज्वेलरी हुई, तो बिना BIS के रजिस्ट्रेशन के नहीं हो सकती, ये सेक्शन 15(1) कहता है। 15(2) भी सेम है, सिर्फ ये है कि जब एक बार मैंडेटरी कर दिया गया तो फिर वो बिना हॉलमार्क के ये तीनों चीजें नहीं होंगी, ना वो सेल कर सकता, ना स्टोर कर सकता, ना एग्जिबिट कर सकता। और सेक्शन 3 ये कहता है कि मतलब उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन्हीं ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क लगाना है जो कि टेस्टिंग के बाद, हॉलमार्किंग सेंटर में प्रॉपर टेस्टिंग के बाद पास पाए गए। सेक्शन 29 अब ये है कि ठीक है, मैंडेटरी हो गया, ज्वेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी हो गया। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो उसके खिलाफ जो पेनाल्टीज हैं वो सेक्शन 29(1) और 2 में है। और उसमें क्या है कि अगर कोई भी ज्वेलर जिसने BIS का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और अगर हॉलमार्क ज्वेलरी बेचता है, उसको कम से कम 1 साल, मतलब 1 लाख का जुर्माना या 1 साल तक की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं अगर उसके खिलाफ एविडेंस पाए जाते हैं। और जो मैक्सिमम पेनाल्टी है वो ये है कि उसमें जो भी उसने प्रोडक्ट बेचा है, हॉलमार्क किया हुआ बेचा है, उसका 5 टाइम्स वैल्यू तक भी कोर्ट कर सकती है, उस कोर्ट के पावर, ऐसे पावर्स। अब हम आते हैं जो अभी गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने 2020 में ओरिजिनल नोटिफाई किया था, जिसके बारे में प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया था, और फिर अभी जो लेटेस्ट 23 जून को ऑर्डर इशू किया हुआ है, क्या क्या प्रोविजंस है उसमें। पहला प्रोविजंस तो ये है कि ये 16 जून से अप्लीकेबल होगा, और स्टार्टिंग में जो अलाउ किया गया था 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के लिए परमिट किया गया है। फिर इसमें जो इसके बाद जो पहला प्रोविजन है उसका जो ब्रीफ है वो ये है कि शैल बी सोल्ड ओनली, जो रेड से मैंने लिखा, ओनली बाय रजिस्टर्ड ज्वेलर्स थ्रू सर्टिफाइड सेल्स आउटलेट, यानी कोई भी ज्वेलरी, हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी जो BIS सर्टिफाइड ज्वेलर्स होंगे वही बेच सकेंगे। और उसमें फिर जो नेक्स्ट जो 23 जून का है उसमें फिर अभी गवर्नमेंट ने पूरे ऑल ओवर इंडिया के 256 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं जहां पर कंपलसरी किया गया है, जिसमें 23 डिस्ट्रिक्ट्स ये गुजरात के हैं, अमरेली, भावनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, जामनगर, मेहसाणा, मोरबी, पाटन, पोरबंदर, वलसाड, आनंद, भरूच, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, बनासकांठा, जूनागढ़, कच्छ, नवसारी, वडोदरा, राजकोट, सूरत और अहमदाबाद, ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स में अभी मैंडेटरी किया गया। फिर ये प्रोविजन कहता है अभी फिलहाल जो मैंडेटरी किया है वो IS 1417 यानी सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के लिए किया गया है, सिल्वर का अभी मैंडेटरी में नहीं लाया गया। और उसमें यह दिया गया है कि जिस समय जो भी प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे, अगर 1417 में कोई अमेंडमेंट होता है, रिवीजन होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वही वैलिड होगा। अब क्या क्या एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, एक्सेप्शंस या एक्सक्लूजन्स क्या क्या है, कौन कौन से टाइप का। पहला जो एक्सक्लूजन है, एनी आर्टिकल मींट फॉर एक्सपोर्ट, यानी कोई भी आर्टिकल जो कि एक्सपोर्ट पर्पज के लिए है उसके ऊपर हॉलमार्किंग कंपलसरी नहीं है। अगर वो कंट्री या वो आपका बायर चाहता है तो आप करा सकते हैं। यानी आर्टिकल विथ वेट लेस देन 2 ग्राम, यानी 2 ग्राम से कम वजन के आर्टिकल के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। फिर कोई भी आर्टिकल जो बाहर से आ रहा है और ऐसे ही हॉलमार्किंग सेंटर में भेजा जाना है इंपोर्ट करने में, उस समय उसके ऊपर नहीं लगा होगा। फाइनली जब सेल होगा तो वो हॉलमार्क्ड ही होना चाहिए। फिर एनी आर्टिकल विच इज मेडिकल, डेंटल, वेटनरी, साइंटिफिक या किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए जो यूज हो रहा है वो इसमें एक्सेप्शन एक्सक्लूड की गई है। फिर कोई भी आर्टिकल जो कि गोल्ड थ्रेड के बने हुए हों, जैसे साड़ियाँ हैं या कुछ इस टाइप के आइटम, वो उनके ऊपर हॉलमार्किंग कंपलसरी नहीं की गई है।
फिर एनी मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल विच इज नॉट सब्सटेंशियली कंप्लीट, यानी जो कंप्लीट नहीं हुआ यानी फिनिश नहीं हुआ है, उसके ऊपर कंपलसरी नहीं है। फिर गोल्ड बुलियन इन एनी शेप, बार, प्लेट, सीट, फॉइल, रॉड, वायर, स्ट्रिप, ट्यूब या क्वाइन, इनके ऊपर कंपलसरी नहीं किया गया। फिर ये अभी जो जून में आया उसमें 23 जून में इसमें ये H से लेकर के M तक और ऐड किए गए हैं एक्सेप्शंस। उसमें पहला है मीट फॉर एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट, दोनों कामों के लिए। पहले सिर्फ एक्सपोर्ट का था, उसको एक्सपोर्ट एंड री इम्पोर्ट दोनों वर्क के लिए यूज कर दिया है। फिर एनी आर्टिकल मीट फॉर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, यानी कोई भी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए अप्लीकेबल, मतलब मैंडेटरी नहीं है। फिर जो डोमेस्टिक बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस हैं, यानी कस्टमर नहीं जहां पर खरीदेगा, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस पर्पज के लिए, वहां पर भी मैंडेटरी नहीं है। फिर स्पेशल कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी, मेनली कुंदन, पोल्की और जड़ायु, उनमें भी कंपलसरी नहीं है। अगर उसमें पॉसिबल है और कराना चाहे हो सकता है तो उसमें करा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं। फिर वॉच एंड फाउंटेन पेन ये एग्जेम्प्ट किए गए हैं। और जो एक और एग्जेम्पशन दिया गया है कि कोई भी ज्वेलर जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है वो विद एंड विदाउट हॉलमार्क दोनों तरह की ज्वेलरी बेच सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी तो आप सब लोग जानते हैं, BIS है। और इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, यानी अगर कोई रूल वायोलेट करता है तो इसमें BIS को भी पावर्स दिए गए हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको भी दिया गया है। और ये ऑर्डर्स का प्रोविजंस ना कंट्रावेंशंस करने पर पेनाल्टी, जो BIS एक्ट में सेक्शन 29 में मैंने बताई, 1 लाख रुपए का मिनिमम जुर्माना या 1 साल तक की सजा, वो वही सेम नियम यहाँ पर इस ऑर्डर को फॉलो न करने पर लागू होगा। अब हम आते हैं कि आखिरकार गोल्ड के ऊपर हॉल मार्किंग की कैसे जाती है, क्योंकि ज्वेलर्स को सभी लोग सेंटर गए भी होंगे लेकिन अंदर के क्या होता है वो उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उसको हमें जानना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपनी ज्वेलरी ज्वेलर को सबमिट करते हैं असाइनिंग एंड हॉल मार्किंग के लिए। पहले क्या होता था, आप एक पैकिंग लिस्ट बनाते थे और वो हॉल मार्किंग सेंटर में भेजते थे। अभी जो नया सिस्टम 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो पैकिंग लिस्ट आप हैंड रिटन या टाइप्ड बनाते थे उसकी जगह पर आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको भेजना है। फिर वो सेंटर इसका सूटेबिलिटी चेक करेगा कि उसके ऊपर हॉल मार्किंग की जा सकती है कि नहीं, किसी तरह के डिफेक्ट्स तो नहीं है। फिर आपको वेट और नंबर ऑफ पीस के हिसाब से कंफर्म करेगा कि जितना आपने ऑनलाइन भेजा है या पैकिंग लिस्ट में भेजा है सेम है कि नहीं। अगर डिफरेंस नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपको एक रिसीप्ट दे देगा। उसके बाद फिर हॉल मार्किंग सेंटर का काम स्टार्ट होता है। वो हर पीस के ऊपर एक नंबर टैग लगाएगा और एक जॉब कार्ड बनाएगा ताकि आगे की प्रोसीजर उसके हिसाब से हो सके। उसके बाद क्या करना है उसको कि आपकी सारी ज्वेलरी लेके जाएगा और उसके ऊपर 100% चेक करेगा। हर पीस के ऊपर XRF मशीन से चेक करेगा और अगर 22 कैरेट का है तो 916 से ऊपर आ रहा है XRF रिजल्ट, और अगर 18 कैरेट का है तो 750 से ऊपर। तो जो भी फाइननेस है उससे ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर वहां पर एक तो ये फाइननेस देखेगा, दूसरा इरिडियम, रूथेनियम, कैडमियम और अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ ऑस्मियम का, तो उसमें वो भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इरिडियम, रूथेनियम और कैडमियम भी नहीं पाया जाएगा तो फिर वो XRF में पास मानी जाएगी। उसके बाद उसमें से कम 10% पीस लेकर के स्क्रैपिंग से, माइक्रो ड्रिलिंग से या कटिंग मेथड से वो सैंपल लेगा। अराउंड मतलब
कम से कम 250 ग्राम, 250 ग्राम से लेकर 400 मिलीग्राम, ग्राम नहीं मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम के आसपास तक का वो स्क्रैपिंग निकालेगा और उसको फिर मेल्ट करके उसका स्ट्रिप बनाएगा। और स्ट्रिप में से फिर सैंपल लिया जाएगा 125 से 150 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम तक का, और उसको उसमें उसका रंग 2.5 से 3 टाइम्स के बीच में उसमें सिल्वर ऐड करेगा और उसको लेड की फॉइल में ले करके और बॉल्स टाइप बना लेगा। उसका लेड का लेने के फाइल में लेने का जो मेन पर्पज है उसका ये है कि फिर क्यूपुलेशन जब करना है तो उसको 1050 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में फर्नेस में रखा जाता है। तो होता क्या है कि जो भी इम्प्योरिटीज हैं सिल्वर और गोल्ड के अलावा वो लेड में एब्जॉर्ब होकर के और भाप बन के उड़ जाती हैं। तो उसमें सिर्फ क्या बचता है, आपका प्योर गोल्ड बचेगा और उसमें जो सिल्वर पहले से प्रेजेंट था और जो थोड़ी से ऐड किया गया है वो बचेगा। फिर उसके बाद वो उसे बटन टाइप बनेगी। बटन को क्या करेगा, उसको स्ट्रिप में कन्वर्ट करेगा, बल्कि बटन को पहले एनीलिंग कर लेगा ताकि स्ट्रिप बनाते समय वो क्रैक्स वगैरह डेवलप ना हो। स्ट्रिप बनाएगा, स्ट्रिप्स को भी थोड़ी से दोबारा एनीलिंग करता है ताकि उसमें जब उसको रोल किया जाए तो कोई क्रैक्स वगैरह नहीं आए। और फिर नाइट्रिक एसिड में रख करके उसको पार्टिंग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड में करीब 90 डिग्री से 95 डिग्री सेंटीग्रेड में 15-15 मिनट के लिए 2 बार पार्टिंग की जाती है। तो उससे क्या होगा, फिर सारी जो भी सिल्वर आपकी है वो भी नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व होकर के अलग हो जाएगी और प्योर गोल्ड की स्ट्रिप बचेगी, जिसको ड्राई करने के बाद दोबारा वेट कर लेंगे। तो जो दोबारा वेट करेंगे तो आप फाइनली क्या हुआ, आपके पास एक इनिशियल वेट बचा मालूम था आपको, एक फाइनल वेट मालूम हुआ। तो जो प्योर गोल्ड का है उससे जब आप डिवाइड करोगे इनिशियल वेट को और उसको एक करेक्शन फैक्टर लगाओगे तो आपका वो आ जाएगा कि कितना परसेंट एक्चुअल में गोल्ड था। अगर 22 कैरेट का है और ये फायर ऐसे करने के बाद वो 91.6% से ऊपर रिजल्ट्स आते हैं तो पूरा का पूरा लॉट पास माना जाएगा। अगर उससे कम आता है तो आपका फुल लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर अब क्या करेगा, जब ये फाइनली पास हो गया तो अभी जो नया सिस्टम है HUID पोर्टल, उसके थ्रू सारे रिजल्ट्स जब उसमें डाल दिए जाएंगे तो पास होने के बाद हर पीस के लिए अलग अलग HUID नंबर, हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर जनरेट होगा। तो इसीलिए वो शुरू में जो टैग लगाए थे हर पीस के ऊपर उसने वो इसी पर्पज के लिए लगाए थे ताकि फिर ये पता चले कि उसको कौन से टैग वाली ज्वेलरी में कौन सा नंबर देना है। तो उसके हिसाब से वो लेजर मार्किंग से हॉल मार्किंग करेगा। पहले क्या था, जो प्रोसीजर था हॉल मार्किंग का, उसमें ये 4 निशान होते थे। पहला BIS का लोगो होता था, दूसरे नंबर पर प्योरिटी लिखी होती थी 22 के 916 या 18 के 750, और तीसरे नंबर पर होता था एसेइंग सेंटर का लोगो और चौथे नंबर पर ज्वेलर का लोगो या जो भी वो डिक्लेयर करता था। अब ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो सिंबल्स हैं वो हटा दिए गए हैं, उनकी जगह पर 6 डिजिट HUID नंबर होगा। यानी पहले 2 सेम रहेंगे जो पहले होते थे और 6 डिजिट HUID नंबर। ये HUID नंबर इस तरह से जनरेट किया जाता है कि अगर आप HUID नंबर वो BIS के पोर्टल में डालेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से ज्वेलर का है और किस हॉल मार्किंग सेंटर ने उसको हॉल मार्क किया है। तो उसकी ट्रेसिएबिलिटी HUID के थ्रू जनरेट हो जाएगी, बजाय कि पहले जो लोगो, क्योंकि होता क्या था देश में अब इतने सारे सेंटर्स हो गए, मिलते जुलते भी लोगो होते हैं और मतलब आइडेंटिफाई करना थोड़ी से मुश्किल होता है। इस वजह से कुछ
सेंटर्स मान लो अगर सही तरीके से काम ना करके अपना लोगो नहीं लगाया, आपने भी क्रॉस चेक नहीं किया, तो उस समस्या के समाधान के लिए ये HUID सिस्टम स्टार्ट किया गया। तो ये अपना जो हॉलमार्किंग प्रोसीजर है, इस पूरी प्रोसीजर में क्या होता है कि जब तक HUID सिस्टम नहीं था तब भी 3 से 5 घंटे करीब लगते थे। तो पूरी प्रोसीजर करके फॉलो करने में, अभी थोड़ी से HUID का नया सॉफ्टवेयर है तो उसकी वजह से थोड़ी प्रोसीजर स्लो हो गई है, तो इसलिए कई बार 1 दिन पूरा या 2 दिन भी, अभी इससे भी ज़्यादा, क्योंकि बीच में सिस्टम उतने अच्छे से चला नहीं तो बैकलॉग इकट्ठा हो गया सेंटर्स के पास। लेकिन बहुत ही जल्दी, मतलब कुछ दिन के भीतर ही है, मैक्सिमम 2 दिन, अदरवाइज 1 दिन में भी ये सिस्टम एक बार स्टेबलाइज होने के बाद प्रोसेस हो जाएगी, तो पहले जैसा सिस्टम था वैसे ही हो जाएगा। फिर हम आते हैं कि जो ज्वेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराना है वो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी भी BIS का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है, जैसा कि अध्यक्ष साहब ने पहले ही बताया था कि गोल्ड के लिए IS 1417 है और सिल्वर के लिए IS 2112 है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, उसमें वो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं। पहला चीज तो इस्टेब्लिशमेंट का डॉक्यूमेंट होगा कि आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है या फिर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है। फिर दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगता है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिस प्रीमाइसेज पर आपका शॉप है उसका एड्रेस प्रूफ क्या है। फिर जो सिग्नेटरी है, जो यानी एप्लीकेशन दे रहा है, उसका आइडेंटिटी प्रूफ, और नियरेस्ट लैंडमार्क या रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से वहां पर कैसे पहुंचा जाएगा शॉप में, वो रूट मैप। ये 4 डॉक्यूमेंट अभी लगते हैं, पहले 2 एक्स्ट्रा लगते थे, वो मैं अब जरूरत नहीं। और फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। अगर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जो सर्टिफिकेट है वो यूज हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड नोटराइज्ड वो लगा सकते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। या फिर GST रजिस्ट्रेशन अगर है आपके पास तो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से भी, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यूज किया जा सकता है। दूसरा है एड्रेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी या ट्रेड लाइसेंस, यानी जो नगर पालिका से साप्रिक्स लाइसेंस या कोई भी एक डॉक्यूमेंट। GST यहाँ पर सेम डॉक्यूमेंट दोबारा भी यूज किया जा सकता है अगर उसमें एड्रेस प्रॉपर सही तरीके से लिखा हुआ है। या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट जिसमें एड्रेस हो, रेंट एग्रीमेंट हो या सेल लीज डीड हो, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यूज किया जा सकता है। फिर आइडेंटिटी प्रूफ, जो प्रोप्राइटर या पार्टनर या डायरेक्टर है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यूज किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में मैप। जो पहले प्रोसीजर थी, सारे डॉक्यूमेंट्स और जब फीस लगती थी वो सब आप BIS के ऑफिस में देते थे। अब वो सारी प्रोसीजर एक ऑनलाइन पोर्टल www.manakonline.in के थ्रू डायरेक्ट कर दी गई है। इसमें किसी भी तरह का मैनुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस पोर्टल में जाकर के सारे ज्वेलर्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब ये एक इंडियन स्टैंडर्ड 2790 है जिसमें कि अलग अलग फाइननेस के लिए क्या क्या कंपोजिशन होना चाहिए, कितना गोल्ड होना चाहिए, कितना सिल्वर होना चाहिए, वो कॉम्बिनेशंस इस इंडियन स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं गाइडेंस के लिए। वैसे भी आप सब लोग इसके बारे में अच्छे से, मतलब चूंकि आपका बिजनेस है तो आप जानते हैं, फिर भी ये एक आप इंडियन स्टैंडर्ड रेफर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने बताई है कि जब आप गोल्ड एलॉय बनाते हो, अगर आप उसमें मतलब 999 या उससे ऊपर का प्योर कॉपर अगर आप यूज करते हो
तो जो आपके मेकिंग में लॉसेज होते हैं, वायर ड्रा करने में लॉसेज होते हैं, वो बहुत ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो जाते हैं या नील हो जाते हैं। तो कमर्शियली अवेलेबल कापर की जगह प्योर कापर या प्योर सिल्वर यूज करेंगे तो आपके लॉसेज काफी कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आता है एक ISA 3095 जो कि सोल्जर के लिए कंपोजिशन बताता है। इसमें पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट ये है कि विदाउट कैडमियम, यानी कैडमियम फ्री आपको जो सोल्जर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या कंपोजिशन होना चाहिए, अलग अलग टाइप के जो जॉइंट के हिसाब से सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड में आप ये कंपोजिशन इस इंडियन स्टैंडर्ड में IS 3095 में दिया हुआ है और आप इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग कैरेट की ज्वेलरी के लिए। ये 14 कैरेट के लिए, पहले 18 और 22 के लिए था। और किसी भी तरह का जो इंक्वायरी है BIS से रिलेटेड, कहीं पर आपको कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो ये हमारा एड्रेस है और ये फ़ोन नंबर्स हैं। हमने सभी ज्वेलर्स के लिए एक फैसिलिटेशन सेल बनाया हुआ है। आप कभी भी कॉल करके अपनी इस प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं या इसमें जो ईमेल ID दिया हुआ है इसमें मेल कर सकते हैं और हम उसका इमीडिएट समाधान करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स हैं उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं। ये हेडक्वार्टर में हॉल मार्किंग डिपार्टमेंट है, वहाँ का एड्रेस है और ये ईमेल ID है। इसमें अपने सजेशंस या प्रॉब्लम्स डायरेक्ट भी एसोसिएशन के थ्रू आप भेज सकते हैं। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। अब चूंकि जो HUID के थ्रू आपको हॉल मार्किंग कराना है जो भी ज्वेलरी, वो उसको कैसे भेजना है, मैं चाहूँगा कि हमारे हॉल मार्किंग सेंटर से NCH से एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपको लाइव डेमो में नेट के थ्रू कैसे आपको काम करना है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। आज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया उनको फायदा हो गया, उससे अलावा और इसका कोई जवाब नहीं फिलहाल, उसका रिफंड नहीं है। लाइसेंस कैंसिल करावं तो प्रोविजन क्या करूं? हाँ बिल्कुल, किसी को कैंसिल कराना है तो वो ईमेल भेज सकता है और अपना कैंसिल करा सकता है, लेकिन अभी जब मैंडेटरी में है तो कैंसिल क्यों कराना है? जब 40 लाख की ઓછું છે તેને લાયસન્સ લેવાની જરૂર નથી, નહીં છતાં એને મેન્ડેટરી લીધું છે। હવે લાયસન્સ જે નહીં લેશે તે પોતે હોલમાર્કિંગ સિવાય દાગીના પણ વેચી શકશે અને હોલમાર્કિંગ વાળા પણ વેચી શકશે। हाँ वही ट्रिक है। अगर किसी का 40 लाख से कम है लेकिन उसे हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। कम है या ज्यादा है उससे कोई रिलेशन नहीं, वो सिर्फ ये है कि वो दोनों तरह की ज्वेलरी बेच सकता है, लेकिन अगर हॉलमार्क ज्वेलरी उसको बेचना है तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही बेचना है, उससे पहले नहीं बेचना। इसलिए कैंसिल कराने का कोई फायदा नहीं है। अभी कोई जब फीस भी नहीं है, आगे रिन्यू भी कराएंगे, तो फिर कैंसिल कराने का क्या फायदा है? अगर आपको बेचना है तो आप हॉलमार्क बेचेंगे जब जरूरत होगी, जब नहीं बेचना है तब बिना हॉलमार्क ही बेचेंगे, अगर आपका 40 लाख से कम टर्नओवर है तो। હોલમાર્કિંગ સેન્ટરમાં આપણે દાગીના જે આપીએ છીએ તેની સેફ્ટીની કોઈ ગેરંટી ખરી? सभी को ये कहा गया है कि उनका जो भी वॉल्यूम है उसके हिसाब, जितना मतलब मैक्सिमम स्टोर उनको करना पड़ता है उसके हिसाब से उन्हें इंश्योरेंस लेना है, और अगर किसी तरह का कोई मिसहैप होता है तो उस इंश्योरेंस के थ्रू वो क्लेम कर सकता है। તમારી જરા ઓળખાણ આપી દો ને। હું ધીરજ દોલતિયા, LIC એજન્ટ એસોસિએશનનો વાઇસ ચેરમેન છું અને જ્વેલરી એસોસિએશનની અંદર હોલસેલર એસોસિએશનની અંદર સેક્રેટરી છું અને મારું પૂનમ જ્વેલર્સ નામનું ચાંદીનું હોલસેલનું કામકાજ છે। પૂનમ જ્વેલર્સ हमारे एसोसिएशन में ज़्यादातर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में क्या होता है, हॉलमार्किंग करके आई है वो कस्टमर को बेचता है। अभी उसमें कुछ भी हुआ और
कुछ भी हुआ तो जवाबदारी मतलब किसकी रहेगी? ट्रेडर की रहेगी, मैन्युफैक्चर की रहेगी या हॉलमार्किंग से? कस्टमर को तो जिसने बेचा है वही करेगा, लेकिन चूंकि आपने जिससे लिया है और एक्चुअल में हॉलमार्किंग उसी ने कराया है, तो आप वो सेम क्लेम उससे ले सकते हैं जिससे आपने खरीदा है, क्योंकि अभी जो हॉलमार्किंग हो रही है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पर हो रही है। कस्टमर क्लेम हम पे करेगा। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर तो को आप वहां नहीं बेच सकते ना, और ओवरऑल पैसे, चलिए ठीक है आप पैसे ही लौटा रहे हो उसके, तो जितने लिए वो लौटाओगे, उसके बदले आप अपना क्लेम उससे ले लेंगे जिसने आपको बेचा है और हॉलमार्किंग कराया। उसके ऊपर जी बिल्कुल। बोलो सर, हमारा ब्रांच ऑफिस है, अलग अलग 5-6 ब्रांच, तो हम अलग अलग उसका लाइसेंस ले सकते हैं? हाँ, प्रीमाइसेस दोनों प्रोविजन है। एक कारपोरेट का लेने का प्रोविजन है, वो हालांकि तब फायदेमंद था जबकि फीस लग रही थी। अभी तो ये है कि जब फीस नहीं लगनी है तो सबका आप अलग अलग कर लें, तो बाद में उसमें आपको पर्टिकुलरली जब पोर्टल के थ्रू आप ज्वेलरी भेजेंगे तो वो ज्यादा आसान रहेगा अगर आप प्रीमाइसेस वाइज। हालांकि क्यों किसी भी जगह करा सकते हैं आप, जहाँ जितने भी सेंटर में जहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन है और आप ओपन है, आप तो किसी भी सेंटर में आप ऑनलाइन जो भी अप्रूव्ड है वो वहाँ पर दिखता है। जिस सेंटर में भेजना चाहो, जिस जगह पर कराना चाहो वो करा सकते हैं। हमको इसको अप्रूवल भेजना है तो दिखाने के लिए, तो हॉलमार्क करके भेजेंगे, ऐसे भेज सकते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। सो जो एग्जीबिशन वगैरह के लिए है वो तो ऑलरेडी परमिटेड है विदाउट हॉलमार्क, लेकिन अगर आप कहीं पर वो करके नॉर्मल डिस्प्ले के लिए है, या क्योंकि वो प्रूव करना मुश्किल होगा आपको, अगर कहीं बीच में पुलिस में रास्ते में बाई चांस इंटरफेयर कर लिया, तो बेटर ये है कि वो हॉलमार्क की हुई हो तो बेटर है। मतलब वैसे तो बिजनेस टू बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी हॉलमार्किंग के लिए भी है, लेकिन कहीं पर आपका कहीं मटेरियल पकड़ा गया, कुछ हुआ तो फिर दिक्कत खड़ी ना हो, इसलिए बेटर है कि करा लें। सर, आपने बोला 2 ग्राम की अंदर की ज्वेलरी हॉलमार्क में नहीं आती है? कंपलसरी नहीं है, की जा सकती है। की जा सकती है, लेकिन टॉप से तो वो 2 पीस होता है, तो उसका वेट कैसे गिना जाता है? 1 पीस का रहेगा या जोड़ी का रहेगा वेट? देखिए, हॉलमार्किंग के लिए तो दोनों अलग अलग पीस हैं। हाँ। और अगर दोनों का इंडिविजुअल वेट 2 ग्राम से कम है तो वो अलग अलग पीस ही माने जाएंगे, ऐसा कुछ। यानी 1 पीस 1,700 का हो तो वो जोड़ी 3.5 ग्राम। हाँ बिल्कुल, वो एग्जेम्प्टेड है बिल्कुल। वो एक डिक्लेरेशन, बेसिकली मैं पर्पज बता देता हूँ उसका, और कोई पर्पज नहीं है किसी तरह उसका डरने या उसका नहीं है। मेन पर्पज उसका ये है कि ताकि जो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन कर रहे हैं सेंटर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ना करके, जो मिसक्रिएंट्स हैं, तो वो आगे से रुक जाए, और जो उसके बाद का जो भी स्टॉक हो आपके पास वो HUID वाला हॉलमार्क किया हो, इस पर्पज के लिए है। और सही बताऊं तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कैसे? अब कस्टमर को जो वो जाएगा एडवर्टाइजमेंट या वो, उसको ये जाएगा कि जो हॉलमार्क ज्वेलरी होगी उसके ऊपर HUID लिखा होगा। कस्टमर जो पर्टिकुलरली जो नॉलेजेबल कस्टमर है, जो एक जागरूक नागरिक है, वो कहेगा ही कि भाई अब इसमें तो वो वाला पुराना वाला सिस्टम है, मैं नहीं लूंगा। तब फिर आप क्या करोगे? वो तो सब लेकिन ऐसा कुछ लो है क्या कि अगर कोई BIS ऑफिसर आता है हमारी ज्वेलरी सील कर सकता है? BIS का नहीं, उस पर्पज से कोई सील नहीं कर सकता। BIS का पर्पज सील करना नहीं है अगर आप रजिस्टर्ड ज्वेलर है। नहीं, रजिस्टर्ड ज्वेलर है, लेकिन पुराना ज्वेलरी जो अभी आपका जो नया रो पुराना हॉलमार्क किया हुआ ना, पुराना हॉलमार्क है, लेकिन हाँ, तो उसमें कहीं कोई सीज करने जैसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी एक इश्यू है क्या? पुराना हॉलमार्क ज्वेलरी तो है, हाँ। लेकिन हमारे पास हॉलमार्किंग का वो रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि क्या पहले उसके बाद भी उसका आपने डिक्लेयर कर दिया ना कि आपके पास इतने पीस हैं, फिर आपके क्या दिक्कत? अच्छा, वो नहीं 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 नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। तभी मैंने कहा इसका एकमात्र पर्पज ये है कि ताकि आगे अब जो हो पुराना ना करते हैं, नई ज्वेलरी HUID के थ्रू हो, ये पर्पज है और कोई पर्पज नहीं। थोड़ा धमाके साथ करा तो बोली जाओ।
શકતા સાહેબ આપણે જે દાગીના વેચીએ છીએ એની અંદર હોલમાર્કિંગ કરાવ્યા પછી એની અંદર ચેન્જીસ કરવાનો સમય આવ્યો કે માનો કે એને ટૂંકી કરવાની છે અથવા તો એમાંથી એક મોટી કાઢી નાખીને તેની જગ્યાએ બુટ્ટી બીજી કે વસ્તુ લગાવવાની છે, ઝુમકા લગાવવાના છે કે પાંગડી लगावानी है, तो तेरे शू करी सका? नहीं, दो चीजें। पहला चीज तो ये है कि नॉर्मली जो भी जितने डिटेचेबल पार्ट होते हैं अलग करने वाले होते हैं वो पहले से ही अलग अलग पार्ट माने जाते हैं और हॉल मार्किंग भी उसी तरह से होनी चाहिए। जितना डॉल है तो उसका ये है कि अलग अलग, लेकिन एक बार हॉलमार्क हो गया तो अगर आपको उसमें दूसरा चीज जोड़ना है, मान लो वेल्ड करना है, तो वो भी हॉलमार्क किया हुआ ही पीस हो, तभी तो बात है ना। सर थोड़ी हिंदी में बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ी मोती डालना है, हाँ, तो मोती पर तो हॉलमार्किंग नहीं होगा, नहीं मोती वायर होगा, हाँ, वायर से उसको जॉइंट करेंगे, उसका खाली होल होगा, होल से वायर से उसमें प्लस माइनस 2 ग्राम का तो ऑलरेडी अभी प्रोविजन दिया हुआ है। हॉलमार्किंग करने के बाद सब 15 ग्राम का एक वेट है, हाँ, उसके अंदर हम जब जॉइंट करेंगे तो और 1 ग्राम के 1.5 ग्राम वजन, हाँ, तो 2 ग्राम तक अलाउड है, प्लस माइनस 2 ऑलरेडी अलाउड है, और उससे ऊपर का भी कमेंट ऑलरेडी दिया जा चुका है, क्योंकि शायद लोगों ने बोला सिर्फ 2 ग्राम में नहीं, कई बार डिफरेंस ज्यादा का भी हो सकता है, वो अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन प्लस माइनस 2 ग्राम का तो अभी भी अलाउड है। फिर हॉलमार्किंग कराने की नहीं जरूरत नहीं। सर अभी जो छोटे व्यापारी, छोटे होलसेलर के व्यापारी है, वो ज्यादातर 2 ग्राम के अंदर की चीज बेचते हैं, लेकिन उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा BIS का? हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने के लिए लेना है, मेन बात ये है, उसको आप अलग अलग समझो। हाँ। आप कितने भी, मैं कहता हूँ आपका 20 लाख है, नई शॉप भी खोली, आपके पास कस्टमर आ गया कि भैया मुझे ये खरीदना और बिना हॉलमार्क के नहीं खरीदना है, तो आप क्या करोगे? अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप नहीं बेच सकते। तो रजिस्ट्रेशन जब फ्री है तो फिर वो किसी का 40 लाख से कम हो या ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन तो हर किसी को ले लेना चाहिए, वो फिर दोनों के लिए स्वतंत्र है, वो ऐसे ही मतलब हॉलमार्क की हुई बेचे या बिना हॉलमार्क की हुई बेचे। सर उसमें समझ लो कि व्यापारी ने उसके पास से 100 ग्राम 2 ग्राम के अंदर का माल निकाला, तो उसका बिलिंग कैसे करेंगे? वो तो सब 2 ग्राम के अंदर है, तो पीस के ऊपर से या कैसे करना है? मिक्स ऑर्नामेंट्स BIS ने बिलिंग को इस पोर्टल के थ्रू से अलग कर रखा है। ये जो पोर्टल है वो हॉल मार्किंग सेंटर में कितने पीस भेजे, उन पीस के ऊपर क्या HUID लग के आया, सिर्फ उसके पर्पज के लिए। आगे की बिलिंग में आपको कस्टमर को आप लिख करके जैसे मान लो 3 या 4 पीस है और आपने लिखा तो तीनों के आपने HUID, ताकि आगे आपको भी पता रहे कि मैंने उसे क्या बेचा था, ये उस पर्पज के लिए। हमने हॉलमार्क नहीं करवाया है, हाँ। तो हमारा 2 ग्राम के अंदर का ही माल है, 100 ग्राम व्यापारी को बिल बना के दिया, उसने मेरे को RTGS किया, हाँ। तो मेरे को हॉलमार्क करवाना नहीं है, तो मैं उसको बिल कैसे बना के दे सकता हूँ? इसमें मेरे को बिल बनाने का BIS का रोल कहाँ है? बस तो वही BIS का रोल बिल बनाने में कहीं नहीं है भाई। कोई आर्टिकल है और बहुत दिन वो नहीं बिक रहा है, तो उसको भी मेल करके बिल्कुल दूसरा आर्टिकल बनवाना है, तो उसमें क्या प्रोसेस है? प्रोसीजर यही है कि वो अपने रिकॉर्ड में, इंटरनल रिकॉर्ड में ये करेगा, ये HUID मैंने मेल्ट किए और दोबारा इसका बनाया, दैट्स ऑल। इसको BIS को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? नहीं है, वो BIS वेरिफिकेशन में नहीं आ रहा, आपके इंटरनल रिकॉर्ड में होगा। નિલેશ ભાઈ લંગાડિયા, વરાછા કતારગામ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ છું અને એનું પ્રેસિડેન્ટ છું। થેન્ક યુ सर। कोई ज्वेलरी जैसे HUID हो गया है और हम लोग कस्टमर को वापस सेल करते हैं, तो वापस BIS के पोर्टल पे जाके उसको वापस सेल मतलब जैसे कोई UID करवा दिया हमने, एक टॉप से एक अंगूठी को UID करवा दिया, कस्टमर को सेल किया है, तो सेल में फिर हमको जैसे ये UID नंबर मिला है, तो उसको वापस वहाँ पे जाके डिलीट करना। पोर्टल में अभी फिलहाल उससे आगे के लिए पोर्टल नहीं ओपन किया गया है, आप लोगों की रिक्वेस्ट से ही पोर्टल सिर्फ अभी यहाँ तक ही है।
जो चाहे उसके लिए ऑप्शन है कि अगर वो चाहता है कि वो पोर्टल के थ्रू ही ट्रांसफर करे या पोर्टल के थ्रू ही कस्टमर को करे। रिकॉर्ड रखना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। सूरत में तो वैसे इतने ज्यादा उत्तर भारत के लोग हैं, मुझे तो लगता है सबको हिंदी तो आती होगी। अगर ज्वेलरी बेचना है तो हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, हिंदी चलती है। अब वो बात अलग है, मेरे को भी 14 साल हो रहे हैं, मैं खुद ही नहीं सीखा ज्यादा, सिर्फ हाँ कोई क्या बता रहा है वो समझ लेते। स्वागत करूँ છું વરાછા કતારગામ જ્વેલર્સ એસોસિએશનથી અને એસકે સિંહ સાહેબ ઘણી મહેનત કરી રહ્યા છે ઘણા સમયથી કે આપણી બીઆઈએસ વચ્ચે સરળતાથી આ લો સમજી શકાય અને સરળતાથી લાગુ પડે, એમની માટે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે સમય આપી રહ્યા છે આપણને। અને ખાસ જણાવવાનું કે બીઆઈએસનો મેઇન પર્પઝ છે કે ભાઈ કોઈને પણ હોલમાર્ક જ્વેલરી વેચવી છે, પછી 1 ગ્રામની હોય, 2 ગ્રામની હોય કે 100 ગ્રામની હોય, વેચવી છે એને હોલમાર્ક લાયસન્સ કમ્પલસરી લેવાનું છે, બરાબર। અને બીજું એ લોકોનું કહેવાનું એવું છે કે હોલમાર્કિંગમાં આપણે હોલમાર્ક કરેલી જે જ્વેલરી વેચીએ છીએ એને અને તમારા રેકોર્ડને, જેમ કે બિલ હોય કે જીએસટી ને લાગુ પડતા જે કંઈ બિલિંગ હોય એને બીઆઈએસ ને કોઈ વસ્તુ લાગુ પડતી નથી। બીઆઈએસ ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગે છે કે જે પણ આપણે જ્વેલરી વેચીએ છીએ એનો આપણે હોલમાર્કિંગ સેક્ટરમાં મોકલીએ તો એને HUID લાગવો જોઈએ અને એ જ્વેલરી વેચવી પડે, એ જ એ ફોલો કરે છે। બાકી તમે કોઈ પણ જ્વેલરી વેચો છો તો એના પોર્ટલ પર એ લોકોએ આપ્યું છે ખરું કે ભાઈ તમે વેચો એનો રેકોર્ડ મૂકવો હોય તો મૂકી શકો છો, કમ્પલસરી નથી કે મૂકવો એ ફરજિયાત નથી। બીજું કે હમણાં જેમ આપણા વડીલ ધીરજભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ આપણે મેજોરિટી એવું બનતું હોય કે કોઈ પણ દાગીનો ટૂંકો લાંબો મોટો કરવો પડતો હોય, એમાં ફેરફાર કરવા પડતો હોય, તો એમાં એમનું કહેવું એવું છે કે તમે એવા કોઈ પણ દાગીના હોય ને એને એવા અલગ અલગ ભાગમાં બનાવો ને બધા ભાગની અલગ અલગ હોલમાર્કિંગ, કારણ કે એક હાર બનાવીએ છીએ તો એના બંને પટ્ટા અલગ, પેન્ડલ અલગ, એમ અલગ હોલમાર્કિંગમાં મોકલો, જેથી કરીને તમારે જ્યારે કંઈ પણ ટૂંકું કે લાંબુ કરવાનું થાય તો એ પાર્ટ પૂરતું HUID લાગુ પડતું નથી, એટલે તમે એમાં ફેરફાર કરી શકો। એમાં એ લોકોએ 2 ગ્રામ સુધીની આપણને છૂટ આપી છે કે 2 ગ્રામ સુધી વધઘટ વજનમાં થાય તો એ મેટર કરતું નથી મતલબમાં એમાં, એટલે એવું એમનું કહેવું છે। એટલી મને જે સમજણ પડી એ મેં તમને કીધી। થેન્ક યુ, ધન્યવાદ, આભાર। બીજા કોઈ પ્રશ્ન બાકી હોય તો એક વસ્તુ જ્વેલર્સ મિત્રોને ખાસ જણાવવાની કે અત્યારે પણ કદાચ આગળ પણ એક વખત અમારી મીટિંગ સિંહ સાહેબ સાથે થઈ ગઈ, એમાં અલગ અલગ સંગઠનના જે હોદ્દેદારો હતા એમને અમીશજી સાથે મીટિંગ થયેલી હતી। હવે ખાસ જે અમુક પ્રશ્નો છે એ અત્યારે કદાચ જ્વેલર્સો માટે જે નવા છે એ તો છે જ, પણ જે નિલેશભાઈ હમણાં જે કીધું ને કે 2 ગ્રામ માટેનું એક્સટેન્શન છે આપણે, પણ એને માટે આપણે વધારે, કારણ કે અત્યારે 100 ગ્રામ 150 ગ્રામનો સેટ હોય ને આપણે કદાચ નાનો મોટો કરવાનો હોય કે અમુક ચેન્જીસ કરવાનો હોય તો એમાં 2 ગ્રામ બહુ ઓછું થાય, એટલે એમાં જે આપણે છે તે મેક્સિમમ લગભગ 8 થી 10 ગ્રામની છૂટ કેન્દ્ર સરકાર પાસે માંગેલી છે ને એમાં અત્યારે આપણી સેન્ટ્રલ લેવલની જે કમિટી છે તેમને પણ આ પોઈન્ટ આપણે મૂકેલો છે કે ભાઈ થોડું જે એક્સટેન્શન છે તે 2 ગ્રામ નહીં પણ થોડુંક વધારે આવે એ માટેની પણ પ્રોસિજર ચાલુ છે। ને સેકન્ડ જે સિંહ સાહેબ એક વસ્તુ ખાસ આપણે પણ જણાવવાની ને અમે કેન્દ્ર લેવલ પર પણ આ વસ્તુ કીધેલી છે કે કોઈક વસ્તુ નાની મોટી થાય છે ને જ્યારે એને HUID થઈ જાય છે, કારણ કે આ HUID એ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ સેલ છે, એટલે જ્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે ત્યારે એ વસ્તુ HUID ક્રિએટ થઈ જાય છે ને એ પછી હોલસેલર પાસે જાય છે ને હોલસેલર પાસેથી રિટેલર પાસે જાય છે, અને જ્યારે કસ્ટમર પાસે પહોંચે છે ત્યારે કસ્ટમર એમ કહે છે કે મને કદાચ બેંગલ્સ છે કે ભાઈ નાની મોટી કરી આપો કે કંઈક પણ એમાં જે ચેન્જીસ થાય છે, હવે એમાં HUID છે તે HUID ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે, કારણ કે એને નાનું મોટું કરવાનું ને એને જે સોલ્ડરિંગ કરવામાં આવે છે ત્યારે HUID કદાચ નીકળી જાય છે, ત્યારે જ્યારે નીકળી જાય છે ત્યારે એને એવી પ્રોસિજર છે કે ભાઈ એને ફરીથી આપણે એને નવેસરથી HUID કરાવવું પડે, એને માટે પણ આપણે રજૂઆત કેન્દ્ર લેવલ પર કરેલી છે ને અમુક જે એક્સટેન્શન છે ભાઈ જડાવ કુંદરમાં છે ને એ બધીમાં અત્યારે એક્સટેન્શન છે આપણે એમાં અત્યારે આપણે કમ્પલસરી નથી। ઓકે સિંહ સાહેબ, ભાઈ
प्लीज करें। सर हमारा बिजनेस मल्टी स्टेट में है, ओके, तो हम यहाँ से बाहर सेल्स करके बेचते हैं गुड्स को, और तो उसके ऊपर कंपलसरी है हमारा सेंट्रली रजिस्ट्रेशन सिर्फ सूरत में ही है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है हॉल मार्किंग का, वो केस में क्या होगा? दो चीजें हैं कि अगर आपने कारपोरेट में लिया होगा तो सब जगह के ऑलरेडी लिस्टेड होंगे कि आपका एक यहाँ जैसे कल्याण ज्वेलर का है, सभी स्टेट में उन्होंने कारपोरेट लेवल में कर लिया। उसके बाद सारे अलग ब्रांचेस भी उनकी डिस्प्ले होती हैं, मतलब अगर सूरत की ब्रांच सूरत के अंदर में डिस्प्ले होगी, आपने अगर ऐसा किया होगा तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया है तो आप उनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अच्छा, और दूसरा एक बिलिंग रिलेटेड क्वेश्चन, अगर कोई भी हेल्प कर पाएगा तो हॉलमार्किंग चार्जेस 18% की कैटेगरी में आता है और हम मैन्युफैक्चरिंग करके उसको 3% में सेल करते हैं, तो बाय चांस उसे सर्विस गिन के 80% में काउंट करे, एज ए ज्वेलरी गिन के 3% में काउंट करे? दो चीजें हैं। पहली चीज तो जो आपको बिलिंग करना है उसमें अलग से जरूरी नहीं कि वहां पर आप बिल में 35 रुपीज लिखो, आप अपना टोटल वैल्यू लिखो, उसके हिसाब से आप जो 1% में सिर्फ कस्टमर की इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए कि पर पीस आपने उससे 35 रुपीज चार्ज किया है। अच्छा, लेकिन उससे 35 चार्ज करके फिर उस पर आप दोबारा टैक्स नहीं लेने का है। बेसिकली वो 35 टोटल है जो आपने वहाँ पे किया, और वहाँ जो आप जीएसटी वो किए वो कहीं ना कहीं आप एग्जेम्पशन ऑलरेडी ले चुके हैं। इट्स मीन इंक्लूसिव प्राइस। हाँ, 35 इज इंक्लूसिव। कि सिंगल पीस अगर देते हैं तो मिनिमम चार्ज कुछ 200 के 250 कुछ। हाँ, वो है अगर सिंगल पीस है, सिंगल पीस जाता है तो वो लोग ज्वेलर्स कैसे उसमें अगर बिलिंग में देंगे? वो सिंगल पीस का तो कोई कस्टमर 200 या 250 देगा नहीं। दो चीजें हैं, कस्टमर को आपको फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि आपने सिर्फ उसके लिए पर्टिकुलर अगर कराया है तो फिर 200 आप चार्ज कर लिए, अदरवाइज आपको उसका रास्ता खुद निकालना पड़ेगा टैक्स वाले में। अदरवाइज आप लिखेंगे कि ओके ये आपका 10,000 का है और 200 रुपए आपने उससे हॉल मार्किंग चार्ज 10,200 का बिल बनाइए, आप उसमें अपना बोलिए। वो कस्टमर तो बोलेगा ना कि 35 रुपीज मैक्सिमम चार्ज। हाँ, तो यही तभी तो मैंने कहा ना कि आपको वहाँ पर तो अपना कुछ ना कुछ टैक्स लेना पड़ेगा कि सिर्फ अगर आप पहले अगर उसने पता है कि उसने डिजाइन एक सेलेक्ट कर लिया और फिर आपने उसके बाद कराया तो आप उसको कह सकते हो कि भाई तुम्हारा सिंगल पीस में करा रहा हूँ, और सिंगल पीस कराने पर 200 रुपए लगते हैं तो तुम्हें देना पड़ेगा वो आप। अदरवाइज अगर पहले से हॉल मार्क किया हुआ है तो आप सिंगल पीस भर क्यों कराए होंगे, फिर तो ज्यादा पीस कराए होंगे। ये आपको रास्ता निकालना पड़ेगा कन्विंस करने के लिए। उसके लिए મારો પ્રશ્ન પૂછવાનો એવો છે કે આજે કોઈ વસ્તુ મારી પાસે બેક ટુ ઓર્ડર આવે છે, હવે એ ઓર્ડર આપણે બનાવ્યો પછી એમાં આ લોકો એવું કહે છે કે એસઆર કરશે તો પછી પીસ તો બગડી જાય, તો એનું શું? અમારે 2 પીસ બનાવો તો 2 પીસ ની લેબર થાય। અને સેકન્ડ સર કે જેની પાસેથી મેં માલ લીધો છે અત્યારે XYZ જે ડીલર છે HYD આપે છે અથવા મારી પાસે જૂનો માલ છે, હવે જૂનો માલ મારી પાસે આવ્યો એટલે મેં હોલમાર્ક કર્યો છે, પણ હવે મારે વેચવો છે તો એમાં ફરી વખત હોલમાર્ક કરવાની મારા નામની જરૂર કરી? આવું મને BSI હોલમાર્ક વાળા અમદાવાદ વાળા મારી પાસે આવ્યા હતા મારી દુકાન શોપ પર, એમને મને એવું કીધું કે તમારી દુકાનની અંદર તમારા નામનો હોલમાર્ક હોવું જોઈએ, એટલે મેં તો મારા નામમાં કરી નાખ્યું છે। પણ હવે HID આવી ગયું, તો HID આવ્યા પછી હવે મેં XYZ વ્યક્તિ પાસેથી માલ લીધો છે तो मारे हॉलमार्क करवाना, मारे दुकान स्टैंपिंग करवाना जरूर खरी के क्या? नहीं, देखिए आपको हॉलमार्क कराना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना ब्रांड नेम इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर इम्बॉसिंग से या जब खरीदने से पहले आप अपना लोगो अलग से हॉलमार्क जहाँ किया उससे अलग जगह पर। हमारे पास जरूरी नहीं थी ना? जरूरी नहीं, वो तो आपको अपना ब्रांड अगर बनाना है तो आप करोगे, नहीं बनाना है तो कोई फर्क नहीं। मैं कोई परिस्थिति बॉम्बे थी मान लो छू तो बॉम्बे मैंने हॉलमार्क HYD કરીને આપી, હવે મારી દુકાનમાં આવ્યો 1 વર્ષ પહેલા મારી દુકાનમાં BSI વાળા આવ્યા હતા, મારી પાસે સેમ્પલ લઈ ગયા, જે સેમ્પલ ત્યાં જ કર્યું છે આવ્યું નથી, પણ હવે એવું કહે છે કે તમારા નામનું જોવું જોઈએ। उस समय का देखिए जो समझी गया हूँ साहब, अंदर बात हूँ એવું समझी गया, પણ હવે મારે એવું જરૂર નથી કે મારા નામનો લોગો મારો। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे શું થાય છે હોલમાર્ક में अब आप जो सैंपल देंगे जब भी देंगे तो आप साथ में जिसका लिया है बिल
आप हमें सैंपल पर्पज के लिए, ताकि ये पता चल सके, कंफर्म रहे कि ये सेंटर से कराया है और इस बंदे का। बीजो प्रश्न आवे छे। हाँ। હોલમાર્ક સેન્ટર वो ટેસ્ટિંગ પર્પઝ કે હોલમાર્ક સેન્ટર છે અને વેચનાર વ્યક્તિ છે એની અમારા હિસાબે મિલી ભગત ઘણી વખત હોય છે પણ એમાં 89% આવે છે 90% આવે છે પણ માનો હોલમાર્ક સેન્ટર મને 916 મારી અને એચયુઆઈડી કરી દીધું અને મેં કસ્ટમર ને આપ્યો ને એ ખોટું સાબિત થયું તો એને જવાબદાર કોણ? नहीं देखिए, दो चीजें हैं। पहला चीज, कुछ ना कुछ तो हर किसी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें साहब आपने क्या बोला नीलेश भाई को कि भाई वो जिम्मेदारी रिटेलर की होगी। समझो मैंने आपको माल बेचा, कस्टमर के लिए तो आप जिम्मेदार हैं। आपने जिससे खरीदा फिर आप उससे क्लेम कर लीजिए। तो क्या होता है साहब, अनाथ आश्रम से बच्चा लाया, किसका है किसको पता? एचयूआईडी से तो पता रहेगा ना कि किसका। मिलते मिलते दिल्ली से चंडीगढ़ से बन गया तो चंडीगढ़। अरे इतनी लंबी चेन कहाँ होती है सर? इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप हॉलमार्क सेंटर को जिम्मेदार ठहराओ, क्योंकि हॉलमार्क सेंटर वाला हॉलमार्क करता है, उसका पैसा भी देता है। हॉलमार्क सेंटर का पैसा हॉलमार्क सेंटर लेता है, तो जिम्मेदार तो मैंने मैन्युफैक्चर किया है, तो हॉलमार्क सेंटर ने मार दिया तो उसको जिम्मेदारी हॉलमार्क सेंटर वाला। नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा कि एक दुकान के अंदर कितना आदमी का माल होगा? आप नरेश भाई, बहुत आदमी का माल जिसका भी हो, आपका ट्रेसिएबिलिटी रहेगा, आप वहाँ से करेंगे। कस्टमर को आप हॉल मार्किंग सेंटर नहीं भेज सकते। एक्शन तो हॉल मार्किंग सेंटर के ऊपर लेते हैं फेल होने पर, लेकिन पैसे तो आपने अल्टीमेटली जिससे ले लिया उसे तो लौटाने होंगे ना भैया। उसको तो हम लौटा देंगे। हाँ, पर जो केस का बड़ा होगा उसका क्या होगा? क्या बड़ा होगा? केस कहाँ, कितने होते हैं हमारे देश में? उनका जो पर्पज है एक है, जो बड़े ज्वेलर्स है उनके पास लाखों पीस है, बराबर है। वो अलग अलग एचयूआईडी करके अलग अलग एचयूआईडी नंबर के अगर कोई पीस का कुछ डिफेक्ट हुआ, कोई कस्टमर ने कोई पीस डिफेक्ट किया और वो जस्टिफाइड कैसे करेंगे? उनका जो एम है, कस्टमर का जो भाव है ये है कि वो जो बड़े ज्वेलर्स है उनके पास 500 पीस है, 500 पीस सेल हो गए, कोई कस्टमर का कुछ डिफेक्ट हुआ और कस्टमर ने चेकिंग कराया, वो 89, 85 कुछ बैठा, उसमें उससे इतने होलसेलर के पास से पीस लिए होंगे, वो जस्टिफाइड कैसे करेंगे? और वो जो कस्टमर एचयूआईडी वाले के बाद तो ये प्रॉब्लम वैसे ही नहीं रहेगी। वो नंबर जैसे तभी मैंने कहा ना, अगर आपने बिल में भी डाल दिया इस कस्टमर को मैंने ये एचयूआईडी बेचा है, तो जैसे ही वो पोर्टल में आप दिखेगा कि ऑटोमेटिकली इमीडिएटली कि इसका है, फिर तो ज्यादा आसान हो गया। जब ऐसा नहीं था एचयूआईडी तब ये कठिन था, अब तो ये ज्यादा कि मान लो किसी बिहार के ज्वेलर ने बनाया, मैन्युफैक्चर ने बनाया है, फिर बिहार से उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश से साउथ पे गया, साउथ से बॉम्बे आया, बॉम्बे से सूरत आया, कलकत्ता का भी माल आता है, सब जगह का माल उन्होंने बेचा। लास्ट सेलिंग पॉइंट ये है, तो केस इन पे होगा या एचयूआईडी के बेसिस पे जिसने बनाया उस पे होगा? नहीं, केस तो पहली बात तो ये है कि केस पहला चीज, अगर आपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया कि उसके पैसे तो वापस हो गए ना, कर दिए, उसके बाद अल्टीमेटली आप अगर डायरेक्ट भी उसको अप्रोच करते हो जिसका एचयूआईडी है, तो भी आप डायरेक्ट उससे भी क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज आपको थ्रू आया हुआ जिससे लिया होगा वो सब क्या होता है, अभी हमारी दुकान में आएंगे ना सब, तो हमारी दुकान में हमारी फाइल मिलती है, तो एचयूआईडी वाला कहाँ ढूंढेगा? एचयूआईडी ऑनलाइन अवेलेबल है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डायरेक्ट अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सीधा जिसने किया है उस पर ही एक्शन लेना चाहिए। एक्शन उसी, हमारा एक्शन उसी पर होगा। ये सिर्फ क्लेम की बात है कि आपको क्लेम कैसे सेटल करना है। बीआईएस का एक्शन तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जिसने हॉल मार्किंग कराया उसके और जिस सेंटर ने किया, इन्हीं दो के ऊपर ही होता है। आपको अपना कंपेंसेशन कैसे करना है वो आप, इनका कहना मतलब ये है कि कस्टमर है, पैसा हम तो वापस दे रहे हैं, मैं आपका जो भी है दे रहे, लेकिन वो बोल रहे मेरे को पैसा नहीं चाहिए, अभी कंज्यूमर फॉर्म में जाके आपके ऊपर मैं केस कर रहा हूँ, बराबर? वो हमारे पर केस करेगा, हम पैसे तो वापस दे रहे हैं, उसको लेना है, वो कंपेंसेशन भी दोगे, कंपेंसेशन भी देना है। हाँ, तो कंज्यूमर फॉर्म जाके केस ही करना है उसको, तो केस तो हमारे पे करेगा। केस के बाद फाइनली क्या होगा? कंपेंसेशन ही दोगे ना आप। जो कंपेंसेशन आप दोगे वही आप कंपेंसेशन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से आप क्लेम कर लो। मतलब वो तो प्रोसेस बहुत लंबा होगा ना, वही अल्टीमेटली होता यही है।
और क्या पहले क्या होता था? चलिए HUID से पहले क्या करते थे? हमारा कहना इसमें है कि हम आपके पास ऐसा चाहते हैं कि इसमें हॉलमार्क सेंटर जिसने किया उसको जिम्मेदार ठहरा। भले रिटेलर व्यापारी तो 100% है, पर हमने तो कहीं से भी मान लिया। हम तो एक विश्वास का धंधा है, सोने का धंधा है, विश्वास का है। આમાં આપણી ક્લેરિટી બહુ સિમ્પલ છે. કેસ જે બી થશે ને તે જે મેન્યુફેક્ચરર છે તે અને જેને સેન્ટર છે તે એ બેની પર થશે. તમને ખાલી જે ઇસ્યુ આવવાનો છે પૈસાનો જે પણ આવવાનો છે એમાં તમારે પેલા જોડે શું કરવું એ તમારે જોવાનું. અને સાહેબ બીજી તમને મારી રિક્વેસ્ટ છે हिंदी में मेरी मेरा रिक्वेस्ट ऐसा है कि मैंने समझो एक चीज बनाया, ये अंगूठी बनाया समझो, तो ऐसा ही सेम टू सेम अंगूठी दूसरा बन सकता है। बिल्कुल। और समझो 75 का डाल देगा, HUID भी डाल देगा, तो वजन भी सेम हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ये ऐसा हिंदुस्तान में शक्य है। देखिए बहुत सारी चीजों में फिर ऐसे होते हैं जिनका व्यवहारिक समाधान नहीं होता। उसमें क्या होता है कि अच्छे बोला ना कि लंबा आदमी जाएगा उसके पीछे टोका जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा तो व्यापारी बन जाएगा। अल्टीमेटली एक बात बताइए, आप अभी अपना गोल्ड ज्वेलरी भूल जाइए। हिंदुस्तान लीवर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं छोटी फैक्ट्री वाला या कहीं किसी रिमोट में जाके नकली भी बेचता है नहीं बेचता, तो वो कौन से एक्ट के अंतर्गत कहीं ना कहीं वो भी एक्शन कराता है ना, जब उसे पता चलता है। वो चीज यहाँ भी लागू होगी। छोटी छोटी चीजों के लिए, हर चीज के लिए नियम नहीं बदल। हम आपको ऐसा सुझाव चाहते हैं, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? आप एसोसिएशन के थ्रू भेजिए अगर आपको ऐसा कुछ नहीं। मैं एसोसिएशन गोल्ड ज्वेलर्स फेडरेशन गोल्ड स्मिथ का मैं सूरत का प्रभारी हूँ। हाँ, तो और तभी तो कह रहा हूँ ना, एसोसिएशन के थ्रू राइटिंग में दीजिए कि इस तरह की समस्या का कुछ समाधान निकाला जाए। वो आर्डर में प्रोविजन आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। नहीं, मेरा इसके लिए क्योंकि आगे मेरे को 10 आदमी पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँ? उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ कि आप पहले ये समस्या लिखिए, आगे फॉरवर्ड करते हैं, साथ में डायरेक्ट भी आप दूसरा जब उसका समाधान आ जाएगा। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वही है सर कि भाई आप जो बोल रहे हैं कि पुराना ज्वेलरी का पोर्टल पर पूरा स्टॉक दिए दो, तो ये स्टॉक देना जरूरी है? सिर्फ उसका जरूरी तो है नहीं, इसके लिए क्या हमारा सब डरता है? मैं इसके लिए पूछता हूँ, आगे वाले के सबसे पूछता हूँ कि सब लोग डरता है कि सर हमारे पास तो 2 किलो नंबर का है, 2 नंबर का वो और कहीं नहीं जा रहा, आपके मतलब BIS के और आपके बीच में ही है। और उसको तो इसीलिए दोनों ऑप्शन कर दिए हैं। आप चाहे वेट डिक्लेयर कर दो, आप चाहे नंबर ऑफ पीस दे, दो में से कोई भी एक डिक्लेयर करना जरूरी है। वो डिक्लेयर करना जरूरी। फिलहाल अभी जो हमारे पास हेडक्वार्टर से राइटिंग में है उसके हिसाब से सभी को डिक्लेयर करना है जो भी रहे। कब तक डिक्लेयर करना है? 15 अगस्त तक। सर एक तो ये इसमें जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं वो हॉलमार्क वाले नहीं ले सकते, सेंटर वाले? किस चीज की? कुछ भी अगर 19-20 होता है कि भाई कोई, देखिए अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ होता क्या है। हमने आपके यहाँ से सैंपल लिया या किसी कस्टमर ने वो किया, तो वो सैंपल फेल हुआ, उसका वेट का डिफरेंस लिया जाएगा। डिफरेंस के हिसाब से उस समय की जो वैल्यू होगी उसका डबल हॉलमार्किंग सेंटर को पे करना है। एक पेनल्टी इमीडिएट ये है हॉलमार्किंग सेंटर से, वो BIS को वो पे करता है। दूसरा, अगर उसके लगातार 3 सैंपल फेल हो गए तो वो सस्पेंड हो जाता है। और तीसरा, अगर किसी एक पीस में भी 1 कैरेट से ज्यादा का डिफरेंस आ गया, यानी 22 कैरेट का है और 21 कैरेट या उससे कम आ गई, तो वो डी-रिकॉग्नाइज हो जाता है। यानी उसमें जो भी फीस भरी है वो सब वो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, उनके अगेंस्ट में भी एक्शन होता है, कंपेंसेशन उन्हें भी देना है जो भी। अच्छा सर, मैं एक ये क्वेश्चन हो रहा है कि मतलब आपका जो लॉट साइज रहता है कि भाई 1 से 40 पीस तक का एक लॉट रहता है, तो जैसे कोई छोटा ज्वेलर है उसने 2 इयरिंग्स भेजा, 2 रिंग भेजा, 2 टॉप्स भेजा, तो ये 6 को एक मल्टीपल लॉट में कन्वर्ट करके ये कर सकते हैं? हाँ, ये आपका कमेंट ऑलरेडी हम लोग अभी जून में हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई थी। ये ऑलरेडी हमने जो टेक्निकल कमेटी है उसको ऑलरेडी पुटअप कर दिया है। जल्दी इस पर डिसीजन कुछ ना कुछ आ जाए। છેલ્લા 2 ક્વેશ્ચન અને આપણે પૂરા કરીએ। સરસ, તમે 2 જણા सर सिल्वर ज्वेलरी में कितने % दिए हुए हॉलमार्किंग के लिए? कितने %? 2112 में है IS में। एक मिनट उसमें देख के बता देते हैं। मार्किंग है वो 800, 835, 900, 925, 970 और 990 ये ग्रेड
2112 में परमिटेड है। सर इसमें कुछ लास्ट डेट दिया हुआ है कि ये डेट से पहले ये सब हॉलमार्किंग करना है, ऐसा कुछ लास्ट? नहीं, सिल्वर में अभी कोई मैंडेटरी नहीं हुआ, सिल्वर जैसा चल रहा था वही। और सर अगर सपोज कीजिए कि कोई ज्वेलरी है 80% के नीचे सिल्वर ज्वेलरी, तो अभी हम क्या बेच सकते हैं उनको? सिल्वर के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, बिना हॉलमार्क किए जैसे पहले बिक रही थी वैसे अभी भी बिक सकती है। अगर आपको हॉलमार्क की भी बेचना है तो हॉलमार्क की भी बेचेंगे, बिना हॉलमार्क वाली बेचना है बिना हॉलमार्क, कोई भी ज्वेलर उसी का उसका कितना भी टर्नओवर हो कुछ भी हो, कंपलसरी सर्टिफिकेशन सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के लिए हुआ। ये चीज है। थैंक यू। सिल्वर के अंदर मिनिमम वेट का कुछ लिमिट है? नहीं, उसमें ना तो मिनिमम वेट जैसा कोई लिमिट है ना मैक्सिमम का है, और वॉलंटरी है, इसलिए वो क्वेश्चन ये राइज नहीं होता मिनिमम मैक्सिमम। 6 महीने के बाद के 7 महीने के बाद आ रहा है, जब आएगा तब बात करेंगे प्लीज। सर ये जो पूरा बिजनेस चलता है सर, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग होता है मैन्युफैक्चरर, बरोबर, उसके बाद सर होलसेलर और सर उसके बाद रिटेलर। सर ये पूरा इतने सालों से ये चल रहा था कि हम लोग मैन्युफैक्चर करवा रहे थे और सर रिटेलर को दे रहे थे, लेकिन तब हम हॉलमार्क नहीं करवाते थे, एज रिटेलर वांट कि उसका लोगो ही लगे। तो सर अभी हम लोग गोल्ड ले रहे हैं यहाँ से और हम लोग मैन्युफैक्चरर करवा रहे हैं सर, तो हम हो गए सर मैन्युफैक्चरर हो गए सर जी। तो सर अभी मैन्युफैक्चरर को जो सेल करना है वही हॉलमार्क करवा के देना है, या वो जितना स्टॉक रख रहा है? स्टॉक नहीं, सेल का। अगर आपकी उसमें रखा हुआ है, सेफ में रखा हुआ है, हाँ, तो जब तक वो डिस्प्ले के लिए या सेल के नहीं है तब तक वो आपका वहां पर है। तो अल्टीमेटली जब भी बनवा के लाओगे पहले तो रखोगे, फिर हॉलमार्किंग सेंटर जाएगा ना। yes, जो आपको बेचना है या डिस्प्ले में भी जो कह सकते हैं, सेफ में जितना जब तक स्टोर है तब तक वो हॉलमार्क करना जरूरी नहीं। अच्छा, सेफ में तब तक मैन्युफैक्चर को हॉलमार्क करना, लेकिन अगर वो डिस्प्ले में या बाहर जा रहा है, कर रहा है या बाहर भेज रहा है, बेच रहा है, तो खाली उसको करवाना है मैन्युफैक्चरर के लिए। हाँ, थैंक यू सर वेरी मच। सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अगर ऑन पेपर 500 या 1 किलोग्राम का स्टॉक है और मैं 5 किलो फिजिकल स्टॉक मेरे पास अभी है, तो सबका मैं हॉलमार्क करा सकता हूँ या इससे कोई जीएसटी का कंसर्न है कि नहीं है? आपस में इनका कोई दोनों लेना, आपको जो भी बेचना है, आपके पास जो भी स्टॉक है आप हॉलमार्क उसको। मेरे पास ऑन पेपर 1 किलो ही स्टॉक है और फिजिकल 5 किलो में स्टॉक है और मैं बेचता हूँ इन केस, और सबका मैं हॉलमार्किंग कराऊँ तो मुझे उसका कोई परचेज बिल दिखाना पड़ेगा? को परचेज बिल से कोई लेना देना नहीं, वो आपसे जीएसटी वाले पूछेंगे, इनकम टैक्स वाले अभी फिलहाल ऐसा कोई। हेलो, હમણાં જે મારા મિત્રએ પ્રશ્ન પૂછ્યો ને કે ભાઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય તો એમાં ખાલી હું વચ્ચે કહી દઉં કે બીઆઈએસ નું કહેવાનો મતલબ ડિસ્પ્લે એટલે આપણે શું સમજીએ ભાઈ ડિસ્પ્લેમાં જે લગાવ્યો છે એ માલ એવું નથી। ડિસ્પ્લે એટલે એનું એવું કે એ લોકો કોઈ પણ માલ આપણે એમની શોપ પર ગયા અને કાઉન્ટર પર બતાવે છે એટલે એ ડિસ્પ્લે થઈ ગયો એક જાતનો કે ભાઈ એ બતાવતા હોય ને બીઆઈએસ વાળા આવે ને ન હોય હॉलमार्किंग तो एक मतलब उसमें एग्जिबिट फॉर सेल लिखा हुआ है, एग्जिबिट फॉर सेल। उनका कहना ऐसा है कि अगर मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को माल दिखा रहा है और टेबल पे रखा है, ये हमारा जो एक्सटेंशन है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल है। सेल फर्स्ट पॉइंट, सेल जब करिए तब सेल से पहले आपको हॉलमार्किंग करवानी है। मतलब वो होलसेलर है। अरे सिंपल बात है ना, मैन्युफैक्चरर भी कारीगर से या अपने वर्कशॉप से बनवा के आएगा ज्वेलरी तो ऑटोमेटिकली तो हॉलमार्क नहीं हो जाएगी ना। वो लाया, उसने अपनी सेफ में रख दिया, कहीं भी रख दिया। आपको चलिए कोई कस्टमर आया भी देखने के लिए, मुझे दिखा दो, मैं सेलेक्ट कर लूँ मुझे क्या क्या खरीदना है, तो आप उसको दिखा करके वो कर, लेकिन सेल से पहले तो आपको हॉलमार्क। हाँ, मतलब वो दिखा रहे हैं तो उसको हॉलमार्किंग कंपल्सरी नहीं है। उनमें हम जो स्लॉट सिलेक्ट करते हैं फिर वो बोलते हैं बराबर फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल है। ओके, सेल के लिए होटल पे हम लोग को जो गोल्ड वेट डालना है वो नेट वेट डालना है ज्वेलरी का है? सर उसमें वेट और पीस दोनों ऑप्शन है। आप खाली पीस डिक्लेयर कर दोगे तो भी चलेगा। डिक्लेरेशन में अभी जो अपने हॉलमार्किंग सेंटर में बेचते हैं हाँ, अभी आप उसको ग्रास वेट देंगे तो वो ग्रास वेरीफाई करना उसके लिए इजी रहेगा। अदरवाइज आपने नेट दिया और ग्रास में, तो वो ग्रास टैली कैसे करेगा कि आपने कितना भेजा?
एक चीज और है, उसमें कोई रेक्टिफिकेशन का सिस्टम नहीं है। जैसे अभी क्या हुआ कि हमने कोई ज्वेलरी भेजी थी, हमने 10 ग्राम की ज्वेलरी भेजी, उसने गलती से उसमें इनपुट किया 12 ग्राम, तो हमारा तो मिसमैच हो गया था। हाँ, तो उसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन का उनके पास वो प्रोविजन का ऑलरेडी वो किया हुआ है, जितना जल्दी हो सकता है आ जाएगा। सिंह सर, एक क्वेश्चन सभी ज्वेलर्स का एक रह गया कि हॉलमार्किंग सेंटर जो भी जब हॉलमार्किंग कराने आते हैं तो उसमें से कुछ 250 ग्राम्स मिलीग्राम्स जैसा टेस्ट करके कुछ उनको टेस्टिंग करते हैं। अगर कोई ज्वेलर्स का ऑर्डर्स का बेस है कि भाई ऑर्डर्स से उन्होंने बनाई और जब अर्जेंसी है, मैरिज है या कुछ भी फंक्शन है उसके लिए बनाई, जब हॉलमार्किंग के लिए भेजी तब उन्होंने उनको तोड़ दिया कि कुछ भी उसको टेस्टिंग करने के लिए दिया और उनको अगले दिन सेल करनी है, तो उसका कुछ प्रोविजन क्या करें? नहीं, देखिए उसको अल्टीमेटली तो प्रोसीजर फॉलो करके करना है। अगर ऐसा पीस है कि वो उससे स्क्रैप करके बिना किसी भी तरह डिजाइन में किसी तरह का डिफेक्ट लाए हुए अगर उतना मिलीग्राम निकाल सकता है तो वो आपको करके देगा और तभी वो वैलिड हॉलमार्किंग भी होगा। तो होना ये चाहिए कि अगर किसी ने कस्टमाइज डिजाइन करके बनवाई तो आप भले ही थोड़ी से वेट उसका या कुछ ऐसा कर दीजिए डिजाइन फाइनली बनाने से पहले कि जितना उसे चाहिए वो उसका इंटीग्रल पार्ट हो उतना वो निकाल ले और आपका डिजाइन खराब ना हो। नहीं, उन्हें भी अल्टीमेटली आपसे बिजनेस करना है भाई, ऐसा नहीं है वो जब आपका पीस खराब करके आप अगली बार जाओगे क्या? जहां तक पॉसिबल होगा वो करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फिर वो आपसे बोल देंगे कि भैया इसमें हॉलमार्किंग नहीं हो सकती बिना ये डिफरेंट वो किए। वो आपको आपस में वो करना पड़ेगा। उन्हें तो टेक्निकली रूल फॉलो करना, गाइडलाइन फॉलो करना। चालू हुआ है नेट का हुआ कुछ? अच्छा, तो मैं जो मेरे पास पीडीएफ फाइल है मैं उससे प्रोसीजर बता देता हूँ। इसमें जो रजिस्ट्रेशन जिनके नहीं है उन्हें कैसे करना है इसका प्रोसीजर है। सबसे पहले आप उसमें जाएंगे गूगल में और manakonline.in करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको इस टाइप का स्क्रीन आएगा। तो ये जहाँ पर रेड कलर का वो है वहाँ पर हॉलमार्किंग लिखा हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। ठीक है, इस स्क्रीन में ऊपर कॉर्नर में जहाँ रेड सर्कल है लॉगिन करके लिखा हुआ है, अब आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप का एक आपको फिर स्क्रीन आएगा। अब इसमें क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करना तो आपका क्रिएट अकाउंट वहाँ लिखा हुआ है। जैसे ही आप वहाँ क्रिएट अकाउंट में आप करेंगे क्लिक करेंगे तो एक इस टाइप से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। वहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, कंफर्म करना है ईमेल आईडी, अपना कुछ पासवर्ड सेट करना है, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो सारा कुछ आप दे करके जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपके एक जो ईमेल आईडी जो आपने वहाँ लिखा है उसमें एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। ठीक है, उस वेरिफिकेशन लिंक में क्लिक कर देंगे आप तो आपका यूजर आईडी और वो पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जब आपका एक बार यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया तो फिर आप वापस लॉगिन में जाएंगे इस जगह पर और अपना यूजर आईडी यानी ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड दिया है और ये कैप्चा है ये करके आप साइन इन करेंगे तो फिर आपको फिर से जो अपना आउटलेट है और उससे रिलेटेड डिटेल्स आपके आ जाएंगे। वो आप अपडेट करने के बाद फिर आपका एक प्रोफाइल आएगा जहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अपडेट कर देंगे, साथ साथ अपलोड स्कैन करके रखेंगे और अपलोड कर देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और बाद में सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज करके
आप अपना पोर्टल में दोबारा जाएंगे, वहाँ एक जब हॉल मार्किंग के लिए HUID के लिए जब आपको भेजना है तो आप जैसे गोल्ड वाला है तो गोल्ड वाले में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आएगा एक क्रिएट यूजर करके, क्रिएट यूजर करके वहाँ के लिए दोबारा आपको यूजर ID और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। वो एक बार कर दिए आप तो जो आपका ओरिजिनल शुरुआत में था, अब आपको जब लॉगिन करना है तो वापस यहीं पर जाके डायरेक्ट क्रिएट यूजर वाला जो लॉगिन ID रहेगा उसको यूज करते हुए जब आप करेंगे तो वहां आपके पास सारे ऑप्शन आएंगे ज्वेलरी भेजने के, जो ऑलरेडी पहले से भेजा हुआ है आपने उसके डिटेल्स, और वहां से जाकर के आप इंडिविजुअल पीसेज उसमें लिखा होता है कि आप चेन भेजना चाहते हैं, बैंगल्स भेजना चाहते हैं, रिंग्स भेजना चाहते हैं, टॉप्स भेजना चाहते हैं, जी कितना पीस है, उसका कितना वेट है, एक साथ मल्टीपल अलग अलग तरीके के हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं और आप वहां पर भेज सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है, लेकिन अभी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सब चीजें कुछ नहीं पता है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आप सीधे सीधे अपनी ज्वेलरी लेकर के पैकिंग लिस्ट, फिजिकल पैकिंग लिस्ट साथ में ले करके जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कॉपी भी साथ में लेके जाइए। वो हर हॉल मार्किंग सेंटर को एक साथ में उन्होंने आपके लिए सेल बना रखी है, हेल्प डेस्क बना रखी है। वहां पर आप जाओगे, वो आपके पोर्टल के थ्रू आपको प्रोसीजर भी बता देगा और दिखा भी देगा और अल्टीमेटली वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो इसका ये इसलिए मतलब ये नहीं कि उसकी वजह जब तक आप ये सीखते नहीं हो तब तक आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। इसी तरह जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, सपोज कर लीजिए, वो भी सीधे सीधे किसी भी नजदीक के हॉल मार्किंग सेंटर में चला जाएगा तो वो हॉल मार्किंग सेंटर उसको गाइड कर देगा, या फिर आप हमारे ऑफिस में फोन कर लेंगे तो भी एनी डेस्क लेकर के आपके पास अगर कंप्यूटर है तो हमारा जो हॉल मार्किंग का कोऑर्डिनेटर है, जो भी असिस्ट करता है, वो आपको सारी प्रोसीजर बता करके आपका रजिस्ट्रेशन करा देगा और जो भी प्रोसेस करना है वो आगे बता देगा। तो इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों हॉल मार्किंग सेंटर के एंड पर, हमारे ऑफिस के एंड पर, दोनों जगह पर हेल्प डेस्क आपको हमेशा उपलब्ध है और आपका काम किसी भी जगह पर रुकेगा नहीं इसकी वजह से। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन। हाँ सर, वो कुंदन ज्वेलरी आपने हॉलमार्क में नहीं आती है, लेकिन मंगलसूत्र आता है, हाँ, मोती की माला आती है, हाँ, तो उसमें भी वही प्रॉब्लम रहता है कि उसमें ग्रोस वेट हॉलमार्क को देने का होता है। यानी समझ लो कि 20 ग्राम का मंगलसूत्र है तो उसमें नेट वेट आएगा 5 मिनट। सबके लिए लंच का व्यवस्था है, 5 मिनट सर। तो वो भी हॉलमार्क में मंगलसूत्र भेजा है तो उसका ग्रोस वेट आएगा 20 ग्राम और नेट वेट है 12 ग्राम जैसा, तो उसका भी बिलिंग बनाएंगे तो मिसमैच जैसा ही होगा नहीं। बिल में दोनों चीज अलग अलग लिख दीजिए ना, उसमें क्या है। पेंडेंट इतने वेट का है और ये इतने वेट का है। शेयर आती है जो चिड़िया, वो मंगलसूत्र की शेयर आती है, उसमें वो चिड़िया आता है, बीट्स आता है उसका। हाँ, तो फिर वो तो ग्रोस वेट ही हॉलमार्क में देंगे तो वो चिड़िया शेयर है तो उसका वेट होगा 20 ग्राम और नेट गोल्ड का वेट है 12 ग्राम। तो आप जब आप बिलिंग करते हो, जब मैंने भी इस तरह के आइटम खरीदे तो उसमें मेरे को AB ज्वेलर वाले ने क्लियरली लिख के दिया है कि ग्रॉस वेट इतना, नेट वेट इतना, तो आप उसको लिख दीजिए ना। तो वो फिर वो मिसमैच जैसा होगा ना। कहाँ मिसमैच होगा? ग्रास वेट भी लिखा आपने, नेट वेट भी लिखा, तो मैच तो हो गया। ग्रास वेट तो मैच हो गया ना। नंबर तो UID नंबर तो उसके हिसाब से बनेगा, ग्रास वेट के हिसाब से बना हुआ है ना। तो जाकर ग्रास वेट भी आपने लिख दिया और नेट वेट भी लिख दिया, तो मिसमैच कहाँ होगा? मिसमैच नहीं होगा। दोनों लिखिए, बिल में दोनों लिखिए, ग्रास वेट इतना, नेट वेट इतना। हाँ बस આપણે હવે કાર્યક્રમ ઘણા પ્રસંગો કાર્યક્રમની પ્રોવિઝન में कि स्टोर के ऊपर अपने को हॉलमार्क रिक्वायर है, प्रोविजन में ऐसा लिखा हुआ है। स्टोर मतलब कहाँ का स्टोर? आपका सेफ नहीं, पर अगर अपने डिस्प्ले है और वैसे अंदर पीछे की साइड कबाड़ है और वो एक टाइप, वो स्टोर नहीं है आपका। वो तो सभी में कबाड़ में ही रखा होता है। स्टोर मतलब आपका सेफ में, लॉकर में जो रखा हो।
और सर अपने जब डिक्लेरेशन कर रहे हैं उसके बाद जो अपने BIS वाले अगर अपने यहाँ पे आते हैं और वो अपने को जो अपने डिक्लेरेशन किया है उसका हॉलमार्क का बिलिंग मांगते हैं, कोई नहीं मांगेगा आपसे, करने का जरूरत है। कोई नहीं मांगेगा आपसे, वो बिलिंग पर्पज के लिए नहीं है, वो सिर्फ पुरानी और नई ज्वेलरी का एक वो है, एस्टिमेट है, उसमें बिलिंग का आपसे तब तक आप कुछ बेच चुके होंगे, आपके 1 साल बाद आएगा तो वो कहेगा कि आप मेरे को सब दिखाओ। नहीं, पर अगर उनके पास हॉलमार्क सेंटर से भी उनके पास एक डेटा रहता है कि इतना इतना आइटम हमारे पास हॉलमार्क हुआ है और अपने पास उससे ज्यादा पीस पे हॉलमार्क हो तो कौन सा, अगर HUID आप उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, पहले क्या रिकॉर्ड उनके पास रहता है कि इतना पीस हमारे पास हॉलमार्क किया हुआ है वो, लेकिन BIS के पास नहीं है रिकॉर्ड, पर वो लोग ले तो सकते हैं, पुराना वाला रिकॉर्ड नहीं है BIS का। पर सर आप ले तो सकते हो ना हॉलमार्क सेंटर के पास, उसके पास भी कैसे सारा होगा कि आपके जितने भी वो, तब तक आप कुछ बेच नहीं चुके होंगे, आप बेच तो रहे ही हो ना, क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं है, आप उसका टेंशन मत करिए, उसकी वजह से किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। HUID ट्रांसफर करना जरूरी है, ऑनलाइन जरूरी नहीं है, अगर आपका कस्टमर मांगता है तो आप करिए, आपका कस्टमर नहीं मांगता तो आप अपना अलग से बिल बना के करिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर कस्टमर को चेक करना है तो कौन सी साइट पे या कौन सा ऐसा ऐप है उसमें वो UID चेक कर सकता है? वो BIS में इन्फॉर्म करेगा अभी फिलहाल। ऐसा कोई पर्टिकुलर साइट या ऐसा कुछ है नहीं कि कस्टमर को देखना है, हमको नहीं देखना है, वो कस्टमर वो बन तो सब कुछ गया था, लेकिन वो एसोसिएशन और सबके रिप्रेजेंटेशन की वजह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अदरवाइज मोबाइल ऐप, अगर आपको ISI मार्क का मैं बता देता हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे और ISI मार्क लगा हुआ है, उसमें एक लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, BIS केयर ऐप करके एक ऐप है, वहां आप वो लाइसेंस नंबर डालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये किस वैलिड है, फेक है, जेन्युइन है, वो पता चल जाएगा। वो चीज की जा सकती है, अभी फिलहाल उसको BIS के पास ही रखा गया, कुछ काम कस्टमर को कुछ नहीं दिखा सकता, डायरेक्ट आप नहीं दिखा सकते, लेकिन आप चाहें कि उसे चाहिए तो वो BIS में आकर के हम उसे बता सकते हैं। थैंक यू। ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ માનદ સેક્રેટરી શ્રી દીપકભાઈ સેઠવાણાને આભાર વિધિ કરવા માટે વિનંતી કરીશ। बिजनेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी, डिपेंडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और अनफॉर्चुनेटली ये ज्वेलरी बिजनेस एक ऐसा है जिसमें मतलब कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं और कुछ लोग अच्छा फॉलो नहीं करते हैं और उसी की वजह से कस्टमर का मतलब जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन नहीं होता है और सरकार इसीलिए कस्टमर का इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए और इनडायरेक्टली आप लोगों का बिजनेस भी स्मूथली स्टेडीली चले और आपकी डिपेंडेबिलिटी बढ़े, इसलिए रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज बनाती है। इसी के अंतर्गत ये नई जो पॉलिसी आई है, हॉलमार्किंग की नई गाइडलाइन आई है, HUID कोड की जो नई पॉलिसी आई है, तो उसी के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। मैं आपसे आशा रखूंगा कि आपने आपके जितने भी क्वेश्चन से डाउट है आपने समझ लिए सिंह साहब से और आप उसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे ताकि कस्टमर को आप पे फेथ बढ़ेगा और जितना फेथ बढ़ेगा उतनी आपकी ब्रांड इमेज बढ़ेगी, ब्रांड इमेज बढ़ेगी तो आपको कंटिन्यूड बिजनेस चलता रहेगा। ये अभी नीड ऑफ द 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी में आपके क्वालिटी प्रोडक्ट और आपकी अच्छी सर्विस ही बहुत मायने रखेगी। तो इसी आप हम लोगों ने ये सालों से किया नहीं है, पूरी 20वीं सेंचुरी तो ऐसी गई है, तो अभी चेंज आया है, तो प्लीज एक्सेप्ट द चेंज और उसके हिसाब से आप अपने आप को उसमें डालिए। तो आज इसी कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद से जो BIS के हमारे साइंटिस्ट आए हैं, हेड आए हैं, गुजरात के हेड है AK सिंह जी, उनका मैं बहुत बहुत ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला कि ताकि इंडस्ट्री को अच्छी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए और गवर्नमेंट और उनके बीच में एक अच्छी सी कड़ी के रूप में उन्होंने जो काम किया है उसके लिए हम सब मिलकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे खुद के ही हमारे कमेटी मेंबर हैं श्री नैनेश भाई पच्चीकर, इन्होंने आप और हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में एक कड़ी बने हैं और उन्होंने भी जो आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही टाइमली था, तो उनके लिए मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैनेजमेंट की ओर से काफी आभारी हूं और हमारे साथी
जो ट्रेजरर हमारे परेश भाई लाठी और हमारे ऑफिस में भी आज आए, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोग आए तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और गवर्नमेंट में फीडबैक जाएगा कि सूरत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये काम किया है और इतने सारे क्वेश्चन आए, इतने सारे फीडबैक आए, तो एक अच्छा हमारा रिपोर्ट जाएगा और आप लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो गए। तो सबका आभार, थैंक यू वेरी मच। लंच रेडी है, आप प्लीज लंच में ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।